Good morning, students. In this lecture, we discuss second method of measuring of dispersion, that is interquartile range and quartile deviation. The difference between the upper quartile and the lower quartile is called interquartile range. Interquartile range is equal to upper quartile minus lower quartile. Now, quartile deviation is also called semi interquartile. Quartile deviation ਨੂੰ semi interquartile range ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and its formula is quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 over 2. Now, relative measure of quartile deviation, also called the coefficient of quartile deviation. Coefficient of quartile deviation, इसनू relative measure of quartile deviation भी किया जाता है, is equal to Q3 minus Q1 over Q3 plus Q1. Now, first we discuss in individual series. Values given are, उन्होंने फर्स्टली असी अरेंज करांगे इन असेंडिंग ऑर्डर के विच। इन मैं डायरैक्टली असेंडिंग ऑर्डर विच कन्वर्ट कर रही हूँ। 15, 18, 20, 24, 27, 28 एंड 30। जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसनों पहला असी असेंडिंग ऑर्डर के विच अरेंज करांगे। नाउ हुण सब तो पहला फाइंड आउट करना असी इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन। पहला असी फाइंड आउट की करांगे Q1 is equal to size of n plus 1 over 4. क्वार्टल के नीचे असी 4 लाने हैं। आइटम इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ आइटम, दैट इज 7 plus 1 over 4 is equal to size of 8 over 4. Size of second item is equal to second item ते किहड़ी प्लेस ते वैल्यू किहड़ी है, दैट इज 18 मार्क्स। ये मार्क्स गिवन सी सानू, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज़ से पहला उन्होंने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के विच करना बहुत जरूरी है। उसनों असेंडिंग ऑर्डर के विच पहला करना, दैन उसनों फाइंड आउट करना। नाउ Q3 इज इक्वल टू n plus 1 over 4। फाइंड आउट की करना 3, इस दे नाल क्या रहेगा 3 इज इक्वल टू 3। 7 plus 1 over 4 is equal to 3 multiply 8 over 4 is equal to 6. Now, size of sixth item is equal to 6 number the value की है, that is 28. Now, interquartile range is equal to Q3 minus Q1 is equal to 28 minus 18, that is 10. Now, इस तो इसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। Q3 minus Q1 over 2, Q3 28 minus 18 over 2 is equal to 10 over 2, that is 5. Now, coefficient of quartile deviation, that is Q3 minus Q1, Q3 plus Q1, 28 minus 18
28 plus 18 is equal to 10/46, that is 0.217. Now second we discuss in discrete series. X value is given, v is given, x which 10, 20, 30, 40, 50 and 60. Now frequency 2, 8, 20, 35, 42 and 20. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ दैट इज सी आप फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू की पहला 2, 2 + 8 10, 10 + 20 30, 30 + 35 65, 60 + 42 107 and 107 + 20 127. n is equal to समेशन है दैट इज़ 127। अगर इस जगह की भी वैल्यू 127 है एंड समेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 127, दैट मीनस साडी फ्रीक्वेंसी जी CF आ बिल्कुल सही है। हम इसे फाइंड आउट करेंगे Q1 इज इक्वल टू n + 1/4। n इत्थे कितना लवेंगे असी, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी का समेशन 127 + 1/4 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करके आएगा साइज ऑफ 32 आइटम इज इक्वल टू 32 वैल्यू कि आएगी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी के 65 की रेंज के आएगी, दैट इज़ एक्स के वैल्यू के सामने की है 40, Q1 की वैल्यू होगी 40। Q3 इज इक्वल टू 3 n + 1/4 इज इक्वल टू 3 127 + 1/4 128 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड करके आएगा 32, 32 ਨੂੰ जो 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे उसकी वैल्यू आएगी 96 इज इक्वल टू 96। इस दे विच आएगा 107 ਦੇ ਵਿੱਚ उसके सामने वैल्यू की है एक्स सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ 50। नाउ इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 minus Q1, 50 minus 40 is equal to 10, quartile deviation is equal to Q3 minus Q1/2, 50 minus 40/2, that is 10/2 is equal to 5. Coefficient of quartile deviation Q3 minus Q1, Q3 plus Q1, 50 minus 40, 50 plus 40 is equal to 10/90 is equal to 0.11. The next example is continuous series. Continuous series ਵਿੱਚ find out ਕਰਾਂਗੇ A is given a years ਦੇ ਵਿੱਚ 0 to 20, 20 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100. Frequency 4, 10, 15, 20 and 11. समेशन F की वैल्यू है 60। इस तो बनावांगे असी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 + 10 14, 14 + 15 29, 29 + 20 49, 49 + 11 60. Now calculation of Q1 is equal to n/4। इंडिविजुअल सीरीज़ ते डिस्क्रीट सीरीज़ दे विच जो Q1 फाइंड आउट करना सी n + 1/4, बट कॉन्टीन्यूस सीरीज़ दे विच डायरैक्ट n/4 आना। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, दैट इज समेशन F 60/4 इज इक्वल टू 15th आइटम
नाउ Q1 की जी वैल्यू 15th कि वैल्यू आ रही है 29 के कम्यूलेटिव फ्रीकुएंसी, ठीक है। तो उसकी जी क्लास इंटरवल की आएगी। नाउ देयरफॉर Q1 लाइज इन क्लास 40 to 60। हम असी फाइंड आउट करेंगे Q1 की वैल्यू। उस लिए फॉर्मूला होंदा है L1 प्लस N/4 माइनस CF/F इंटू आई। L1 इत्थे की आ लोअर लिमिट ऑफ क्लास, दैट इज़ 40 to 60 विच लोअर लिमिट किहड़ी आ 40 प्लस N/4 N/4 की जी वैल्यू कड्डी सी वो की सी 15 माइनस CF जिहड़ा लैंदे असी उस तो उपर वाली वैल्यू लैंदे आ, दैट इज़ 14 एंड F की वैल्यू इत्थे की है दैट इज़ 15 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस कितना है 20 इज इक्वल टू 40 प्लस 1/15 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 41.33। नाउ नेक्स्ट Q3 दे लाइन 3N/4 दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई 60/4 दैट इज़ 45th आइटम। देयरफॉर Q3 लाइज इन 45th किस रेंज में आ रही है 49 के CF वाली च देखना वो कि क्लास इंटरवल आ रही है 60 and 80। Q3 लाइज इन क्लास 60 and 80। नाउ Q3 नू फाइंड आउट करांगे। Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस 3N/4 माइनस CF/F इंटू आई। L1 दैट इज़ लोअर क्लास दैट इज़ 60 प्लस 3N/4 की वैल्यू इतने फाइंड आउट की 45 माइनस CF ये वाली क्लास इंटरवल आ, ठीक है। 45 वैल्यू इस क्लास इंटरवल के लाई कर रही है 60 to 80 दैट इज़ CF। उस तो उपर वाली वैल्यू में CF की वैल्यू इतने पुट करनी है दैट इज़ 29। सेम नहीं पुट करनी, उस तो उपर वाली वैल्यू पुट करना। नीचे F ये की वैल्यू पुट करनी है F ये की है CF की। F की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस कितना क्लास इंटरवल के 20 इज इक्वल टू 60 प्लस 16 is equal to 76। So now interquartile range is equal to Q3 minus Q1। Q3 की वैल्यू सी 76 माइनस 41.33 is equal to 34.67। नेक्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 over 2 that is 71 minus 41.33 divided by 2 is equal to 17.33। now coefficient of quartile deviation Q3 minus Q1 over Q3 plus Q1 is equal to 76 minus 41.3 divided by 76 plus 41.3 is equal to 34.67 divided by 117.33 is equal to 0.29 answer।